गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग को ब्लड वेसल्स के बारे में बताएंगे। तो आज हम लोग देखें ब्लड वेसल्स जो होता है ह्यूमन बीइंग का सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे ह्यूमन हार्ट का वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट्स। तो ह्यूमन हार्ट्स तक ब्लड जाएगा कैसे, हाउ टू पंप द ब्लड बाय द ह्यूमन हार्ट, कैसे करेगा? दे रिक्वायर इट रिक्वायर्स द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लेट अस सी टुडे व्हाट इज द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है? टुडे लेट अस सी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स इज ऑफ थ्री टाइप्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, नाइन्थ क्लास में भी पढ़े होंगे, आर्टरी, दूसरा वेन और तीसरा कैपिलरीज। कैपिलरीज कैपिलरीज इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द आर्टरी। तो कह सकते हैं क्या कि आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, थ्री important components of the blood vessels which carry the blood, okay, blood to the respective sides pumped by the heart. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि आर्टरी जनरली क्या होता है, जनरल परसेप्शन क्या है आर्टरी का, कि आर्टरी भाई डीप सीटेड होता है और वेन क्या होता है, सुपरफिशियल होता है। वेन क्या होता है, सुपरफिशियल। दिस इज द सुपरफिशियल वेन्स in the subcutaneous injection is administered or just introduced. Whatever the vaccines, whatever the injections, general mainly is introduced into vein, not artery. Artery is never visible. Artery can be felt because the blood move the with jerk movement. You can perceive below the base of the thumb, below the base of the thumb, where the you feel at regular interval of time some jerk movement of the blood is exerted. You feel it. Okay. Now let us see the structure of artery and vein. A structure of artery and vein. Let us see a structure of artery and vein. This one is the called the layers of arteries. Layers of arteries. This one is the blood vessels. This one is the blood vessels artery. This one is the blood vessels artery. And this one, similar structures we can draw here. We can draw here. Draw here. Similar structures we can differentiate so that we can differentiate the different artery and vein. Artery and vein. This one is the middle layers, and this one is the outer layers, outermost layers. This one is the basic difference. With basic difference, we can see it. This one is the lumen of the. This one is the lumen of the arteries. Lumen of the arteries. And this one is the lumen of the. This one is the lumen of the vein. This one is the lumen of the vein. Where we can see that this one is the lumen. What is this? Lumen. Lumen. Lumen, this one. And just this layer is called tunica interna. Tunica
internal. This one is the tunica interna. This one is the tunica interna. And inside a volume, inside a hollow space, that is called lumen. That is called lumen. Tunica media. Tunica media. This one is called tunica media. Tunica media, you can see this one is the tunica media, and this one is the tunica externa. This one is the called tunica externa. This one is the called tunica externa. If the compare between artery and vein, what we will observe here? Lumen of the vein is greater than lumen of the artery, and tunica media is enlarged larger than the tunica media of the vein, and tunica externa is more spacious in vein, but in the case of tunica externa is less spacious, less occupied there. So we can conclude at the relations. We know that this one is the more diameters. Vein has the more diameters. Vein has more diameters. This one is the least diameter, and this one is the more diameter. This one are radius, and this one is the radius. This one. What the relation with the radiation? आप कहेंगे कि भाई आप रेडियस मैथ पढ़ाने लगे? No. Here is the concept exist. The radius or diameter is inversely proportional to क्या? pressure. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी प्रेशर जिसमें ज्यादा होगा, प्रेशर जिसमें ज्यादा होगा उसका रेडियस कम होगा, जिसमें प्रेशर रेडियस ज्यादा होगा उसमें प्रेशर कम होगा. लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर. और दिस वन इज द कॉल्ड हाई प्रेशर. A less radius, high pressure. The pressure is the high, a radius is the low. And this one is the low pressure. Pressure is low, and radius is greater than the artery. अब कंक्लूजन पर हम लोग क्या पूछते हैं कि ल्यूमेन चूंकि इसका बड़ा है और ल्यूमेन इसकी क्या है, छोटा है, तो इससे क्या कंक्लूजन पहुंचते हैं कि आर्टरी हैज द ब्लड फ्लोइंग एट द हाई स्पीड एंड प्रेशर विथ जर्क मूवमेंट. हाई प्रेशर blood flows at high pressure and speed. हाई प्रेशर एंड स्पीड किस पे? आर्टरी में. लेकिन इसमें ब्लड फ्लोज एट द स्लो रेट ऑफ स्पीड एंड लो प्रेशर. when it has valve to prevent the backflow of the blood in vein, but in artery it doesn't have any type of the valve. It flows at high speed inside. Vein has the artery thick and elastic. कौन? आर्टरी थिक एंड इलास्टिक. आप लोग पाइप देखे होंगे, चिपका हुआ पाइप, जैसे ही प्रेशर आता है ये स्वेल हो जाता है, फिर चिपकता है, फिर आपका स्वेल हो जाता है. डेथ होता है किसी भी पेशेंट का तो सबसे पहले ब्लड कहां से जाता है? आर्टरी से जाता है. आर्टरी में नील हो जाता है ब्लड, लेकिन डेथ के बाद भी वेन में ब्लड रह जाता है.
तो ये सबसे बड़ी एक तरह से जानते हैं। तो वेन में क्या होता है कि बैक फ्लो नहीं होता, जबकि आर्टरी में बैक फ्लो आता है। प्रेशर जर्क मूवमेंट, जैसे आप लोग पानी में पत्थर फेंकते हैं तो एक वाटर करंट दूसरे वाटर करंट क्या करता है, धक्का देता है। उसी तरह ब्लड जब पंप करता है, ऐसे पंप करता है तो ब्लड क्या होता है, आगे की तरफ धक्का देते हुए बढ़ता है। तो इस तरह से जर्क मूवमेंट होता है आर्टरी में, जबकि वेन में ऐसा नहीं होता। वेन आपका थीन वॉल होता है। कैसा होता है, थीन वॉल। और कैसा होता है, इन इलास्टिक होता है, इन इलास्टिक। इस तरह से कंसेप्चुअल रूप से आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। इट डजंट रिक्वायर एनी अदर मीन्स ऑफ द लर्निंग, इट इज वेरी इजीएस्ट। इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखते रहिए वीडियो। जितना ही सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ही आपका वीडियो एक से एक आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो बेसिक कंसेप्चुअल मेथड्स ये है कि ये आपका ब्रेन में। दूसरी बात, आर्टरी क्या होता है, डीप सीटेड। दिस वन इज द रेडियल आर्टरी, पार्ट ऑफ द रेडियल आर्टरी। इन ब्रैकियल दिस वन इज द आर्टरी थ्रू विच द वी कैन मेजर द ब्लड प्रेशर। यू कैन आल्सो फील हियर and you can also feel here, we can also feel here some jerk movement is exerted at the base of the thumb। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये डिफरेंसेस देखिए। आर्टरी क्या होता है, डीप सीटेड होता है। वेन क्या होता है, सुपरफिशियल होता है। आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब लेट अस सी द अदर पोर्शंस। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा होता है, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा, एओर्टा होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, कैपिलरी। और दूसरी बात कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। यानी ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा और ये तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा लो, इसमें रहता है, यानी कंसंट्रेशन इसका ज्यादा रहता है। वेन में सबसे लार्जेस्ट जो होता है, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, वेन का। वेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन होता है, वेना कावा। हम लोग हट के डायग्राम में देखे थे ना, वेना कावा पोस्ट, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। इस तरह से ये वेना कावा, इस तरह का वेना कावा। स्मॉलेस्ट आपका वेनलेट, स्मॉलेस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेनलेट। तो हम एक तरह से ब्लड वेसल्स का देखें, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा और ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन ऐसा है पल्मोनरी वेन, डू यू नो, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड को कैरी करता है। ब्लड फ्रॉम दी, कहां से, लंग्स टू हार्ट, लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट, ये लगता है लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। और इसमें पल्मोनरी आर्टरी, ये आर्टरी होते हुए भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ब्लड को फ्रॉम हार्ट, उल्टा करता है, फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। प्यूरिफिकेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन मींस लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन और लोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से हम डिफरेंसेस आर्टरी और वेन में देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट कैपिलरीज। कैपिलरीज जो आता है, this one is the blood vessels, arterioles, this one the arterioles, and this one is the blood capillaries. This one
this one is the we could draw it in these methods. Simply, you have to show network of the fine network of the capillaries. Fine network of the capillaries. Fine network of the capillaries. You can show it in this way. You can show it in this way. Capillaries, thin little single layers of cells, single layers of cells, endothelial cells. ये सब बना हुआ जाकर डिफ्यूजन होता है। ये आपका आर्टरी हो गया, ये आर्टरी और ये आपका जस्ट आर्टियोल्स या आर्टेरियोल्स आगे और ये ब्लैक कैपिलरीज। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि ये चीज आपका यहां से देखते हैं तो देखिए ये कैपिलरीज है, डिफ्यूजन होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, this one is the oxygenated and this one is the deoxygenated blood. This one is the called deoxygenated blood. Here deoxygenated blood. This one diffused in this side and this one is the with deoxygenated blood. Deoxygenated blood. Deoxygenated blood. This one is the oxygenated blood. And this one is the oxygenated blood. Oxygenated blood. This one is the oxygenated. Where the side the filtration of the blood and oxygenated converted into deoxygenated. And this is the vein. This is the वेनलेट। ये वेनलेट होता है, वेनलेट। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि ब्लड आपका हील करता है कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज जहाँ की सेल का किसी भी ऑर्गन्स का पार्ट हो वहां पर क्या करता है कि फिल्टर आउट करता है, और लिम्फ भी उसी तरह बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि लिम्फ कैसे फिल्टर आउट करता है। बशर्ते कि आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियो, ठीक है ना। तो उसके बाद में जैसे क्वेश्चन कुछ आता है, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि आपका विच ऑफ द, देखो क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैव valve, ऐसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा। पहला मान लो कि दे दिया वेन दे दिया, दूसरा आपका दे दिया क्या आर्टरी, और तीसरा दे दिया कैपिलरी, और चौथा दे दिया none of these, ऐसे दे दिया। तो व्हाट विल बी योर आंसर? द valve। ये वेन के पास क्या होता है valve। अब इसे पूछ देगा कि name the blood vessels which in which blood flows at high speed। ये आपको पूछ देगा। फिर इसमें पूछ देगा कैपिलरीज, बी वेन, और डी सी आपको क्या हो जाएगा आर्टरीज, और तीसरा हो जाएगा ऑल ऑफ देम एबव all of them। What will be your answer? Artery। Artery has the highest speed, blood flows at the high speed। तो ये चीज आपका क्वेश्चंस में पढ़ना है, देखना है ब्लड वेसल्स में। अगर आप इसको देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, तो
कोई नहीं डाउट कर सकता कि जो नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपको बढ़िया नंबर नहीं आएगा, निश्चित रूप से आएगा और उसको आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।